Assalamu alaikum students of class 3, how are you? Welcome to your English class. Open your ORC book page number 78, story 11, The Sorceress Apprentice. Sorceress means magician, apprentice means student. जादूगर का शागिर्द, ठीक है। तो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। पहले इस स्टोरी में ये है कि जेम्स एक लड़का है छोटा, फिर उसके गांव में सारी सब्जियां और अनाज ज़मीनों से गायब हो जाते हैं। फिर वो गांव वालों की मदद करने निकल पड़ता है। फिर वो ठान लेता है कि मैं जादूगर से मिलूँगा और उसे वो सब कुछ छीन के वापस आऊँगा। तो वो जादूगर से मिलता है। अब वो कैसे वो वापस लाता है चीज़ें, कैसे उस जादूगर से मिलता है, लेट्स रीड इन द स्टोरी। So first let's read the story. Many years ago there was a village in a valley on a high mountain. Close by there was a castle, and the people of the village had never been to the castle, but they had heard that the sorceress lived there. One autumn, when the crops were ready for harvest, the villagers woke to find all their fields empty. The crops had disappeared as if by magic. There were no vegetables, fruits, nuts, berries, or grains anywhere. The fields were bare. The farmers were puzzled. सालों पहले पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत वादी थी। उस वादी में एक गांव था और वहाँ पे एक कैसल, एक किला भी था। कैसल मतलब किला। लेकिन गांव के लोग कभी उस किले में नहीं गए। उनको पता था कि वहाँ पे एक जादूगर रहता है, सॉर्सरेस रहता है। तो एक दिन जब फसल कटने को तैयार थी, हार्वेस्ट मीन्स रीपिंग, फसल काटना, तो कटने को तैयार थी, अचानक गांव वालों ने देखा कि उनकी ज़मीनों से सारी सब्जियां, फ्रूट्स और सारा अनाज गायब है। और ऐसा लगता है कि किसी ने जादू से उसे गायब कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं था और गांव वाले बहुत परेशान थे। Now come to the book page 79. The winter was a hard time for all. Somehow the villagers lived on the food they had stored. In the spring the farmers planted their crops. The plants grew well, and in the autumn they were ready to be harvested. This time the men stood guard over their crops, but one morning they found all their crops were gone. Their fields were bare. It must be magic, cried the villagers. What shall we eat this winter? Asked the women. And the frightened and hungry children cried. James, a brave young boy, shouted, I'll find out who has done this. Before anyone could stop him, he started off up the steep mountain. गांव वालों के लिए सर्दियों का मौसम एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। उस मौसम में वो खाने पीने की चीज़ें जो उन्होंने सेव करके रखी हुई हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाहर आती है, बाहर में वो उगाते हैं, फसल उगाते हैं। फिर वो फसल खिज़ां में वो फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक सुबह खिज़ां का मौसम था, उन्होंने देखा कि उनकी फसल में कुछ भी नहीं है, वो बहुत खाली हैं। औरतें चिल्लाने लगी, बच्चे रोने लगे कि अब हम क्या खाएंगे, अब हमारी सर्दियाँ कैसे गुजरेंगी। तब जेम्स ने आवाज़ दी कि मैं सब कुछ वापस लाऊंगा। जब तक कि उसे कोई रोकता हो निकल पड़ा और पहाड़ों पे चलता हुआ भागता हुआ गया। James walked until dusk. When he was near the castle, suddenly a tall man with a long beard appeared on the path. The man was wearing a long, sparkling, shining coat and carrying a long stick on his head. On his head was a tall, pointed cap. A large black raven was perched on his arm. जेम्स जैसे ही किले के करीब पहुंचा तो उसने देखा, उसे यहाँ पे ये देखे, ही शाइनिंग कोट, अ लॉन्ग शाइनिंग कोट एंड अ हैट एंड रेवन ऑन हिज आर्म एंड ही हैड बियर्ड एंड अ लॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड। आप देख रहे हैं कि इसके हाथ में बड़ी सी स्टिक भी है, उसे कोट भी पहना हुआ है। रेवन मतलब एक उकाब की तरह एक पंछी है, उसके कंधे पे बैठा हुआ है और वो जेम्स से मिल रहा है, उससे कुछ पूछ रहा है। James was frightened, but he thought, I must be brave. What will the people of my village think if I run home now? There is no food in my village, said the James to the tall man. I'm tired and hungry. Will you give me some food if I work for you? The sorceress looked carefully at James. What?
He said, I do need an apprentice. Follow me. The raven flew to James and perched on his shoulder. The sorceress led James into the castle. They passed along dark corridors, and James saw some doors ajar. Some rooms were filled with ट्रेयर एंड अदर्स विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जेम्स ने देखा कि अजर मीन्स जेम्स ने देखा कि थोड़े से दरवाजे खुले हुए हैं, कुछ रूम्स में वहाँ पे वेजिटेबल्स और उसके जो फसल जो उनकी गायब हो गई थी वो पड़ी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल पड़े हैं जो उनकी ज़मीनों से गायब हो गए थे, कुछ रूम्स में ख़जाना भी पड़ा हुआ है। जेम्स को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं वापस जाऊँगा तो गाँव वाले क्या सोचेंगे कि मैं उनकी चीज़ें लिए बगैर वापस आ गया। तो वो जादूगर उसे कैसल लेके आया है। कैसल बहुत ही डरावना है और वहाँ पे उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल सारे पड़े हैं। लेट्स रीड अहेड। दीज मस्ट बी फ्रॉम आवर फील्ड्स गैस्प्ड जेम्स। जेम्स ने कहा ये शायद हमारी ज़मीनों के ही होंगे। उसने खुद से ऐसे दिल में कहा। यस सेड द रेवन। गैस्प मतलब हल्के से आवाज़ में उसने कहा। यस सेड द रेवन। अब वो जो रेवन उसके कांधे पे पंछी बैठा हुआ है वो भी बोल रहा है, हाँ ये वही है। This wicked sorcerer takes everything. If you can learn his secrets, you can save your people. You can also save me. I am a prisoner here. अगर तुम इसके सारे राज जान जाओगे इस जादूगर के, तो तुम अपने गांव की मदद कर सकते हो और तुम मुझे भी यहाँ से निकाल सकते हो। मैं भी यहाँ पे एक कैदी हूँ। प्रिजनर मीन्स कैदी। They came to a large hall. In the hall there was a long table, and on it were bottles and jars, beakers and tubes. Strange color liquid bubbles into the boil in large pots on the stone floor. James' eyes opened wide. This must be where he works his magic, thought James. Over the next few days, James worked very hard. The sorceress gave him no free time. He said, stir the mixture in these large pots and make sure the biggest pot is full at all time. जेम्स ने वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े बर्तन हैं, वहाँ पे बीकर्स हैं अजीब रंग के, कुछ उसमें चीज़ें मिली हुई हैं और जो उसमें लिक्विड है उसके कलर्स बहुत अजीब हैं, कोई पर्पल, कोई ग्रीन, कोई येलो। तो उस जादूगर ने जेम्स को बोला कि इसे मिलाते रहो और ये मिक्सचर बनाते रहो और ये याद रखना कि सारे जो बर्तन हैं वो फुल होने चाहिए। सो जेम्स स्टिर्ड एंड स्टिर्ड। ही कैरीड बकेट। जेम्स वो जो लिक्विड है वो मिलाता रहा। उसने पानी की बाल्टियाँ भर भर के लाता रहा। He carried buckets of water all day long and filled the big pot. One day James tried to leave, but suddenly in front of him a wall appeared by magic. His way was blocked. If I learn the sorcerer's magic spell, said James to himself, I can leave the castle. The sorceress used many magic spells, but when James was near, the sorceress spoke softly. James could never hear what he was saying. One day, James was so tired that he fell asleep behind some large pots in the hall. Dear students, you can see some large pots and here James is sleeping. आप देख रहे हैं कि ये जेम्स है, यहाँ पे सोया हुआ है। जेम्स ने सोचा कि अगर मैं उसकी मैजिकल स्पेल्स जान जाऊँगा तो मैं शायद कुछ कर सकूँ। वो ये जानना चाहता था कि वो क्या वर्ड्स हैं जो ये सॉर्सरस कहता है और सारी चीज़ें मूवमेंट में आ जाती हैं। मैजिकल स्पेल्स मीन्स मैजिकल वर्ड्स, जादुई अल्फाज जो बोलते हैं तो चीज़ों पे जादू होना शुरू हो जाता है। जेम्स ने बहुत जाने की कोशिश की। एक दिन तो उसने भागने की भी कोशिश की, फिर अचानक से जादू से उसके आगे दीवार आ गई, फिर वो उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, फिर वो नहीं जा पाया। फिर एक दिन उसके जहाँ पे ये सॉर्सरस जादूगर जादू करता है, जेम्स को नींद आ गई। फिर आगे देखें। द सॉर्सरस डिड नॉट सी हिम। अ लाउड क्रैश वोक जेम्स। जादूगर को ये पता नहीं था कि जेम्स यहाँ पे सोया हुआ है। अचानक एक बड़ी सी आवाज़ हुई और जेम्स की आँख खुल गई। द सॉर्सरस हैड ड्रॉप अ जार ऑन द फ्लोर, देन जेम्स हर्ड हिम यूज अ मैजिक स्पेल। फिर जेम्स ने सुना कि इस जादूगर ने एक बड़ा सा बर्तन नीचे फेंका। ये देखें, ये नीचे गिरा हुआ है। फिर वो मैजिकल स्पेल्स बोल रहा है। मैजिकल स्पेल्स मतलब आब्राकाडाब्रा छू,
आबरा कडाबरा, छू, इस तरह के जो आवाज़ होते हैं, अंतर मंतर, जादू जंतर, ये सारे मैजिकल स्पेल्स हैं। तो इस तरह के कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं जो जादूगर बोलते हैं और वो जादू करते हैं। Now James was surprised to see a broom flying through the air and sweep up on the broken jar. जेम्स ये देख के हैरान हो गया कि वो जो झाड़ू था वो हवा में उड़ने लगा और वो पॉट्स, ब्रोकन जो पॉट्स थे, बर्तन थे, उन पे फेरने लगा और वो बाल्टियाँ भी भरने लगा पानी की। The next day, when the sorceress was out, James repeated the magic spell. The broom swept the whole hall. James was so pleased. James ordered the broom to fetch the water from the pot, and the broom did that too, but the broom did not stop. It carried the buckets of water and swept the floor as it went. Soon the large pot was full and there was water all over the floor. James did not know how to stop the broom. The water was now flowing out of the door and filling the castle. Then the sorceress returned. He was so angry, he shouted some magic words. The broom stopped fetching water. Beat him, screamed the sorceress, and the broom began to beat the James. But James now knew the magic words, so he told the broom to stop. As the sorceress came near, James said, "Now I know your magic spells. I shall leave the castle." The sorceress said the magic words and returned to. तो जब वो जादूगर नहीं था तो जेम्स ने उस ब्रूम को, मतलब झाड़ू पे वो मैजिकल वर्ड्स बोले और वो झाड़ू काम करने शुरू हो गया और पानी के बर्तन भरने लगा। लेकिन जेम्स को ये पता नहीं था कि उसको स्टॉप कैसे करना है। जब तक वो जादूगर वापस आता तो पूरे किले में पानी भर चुका था, वो झाड़ू स्टॉप नहीं हो रहा था। तो जादूगर वापस आया तो उसने देखा कि सारा पानी और सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। फिर उसने जादू से उस झाड़ू को बोला कि बीट हिम, मारो उसे, मारो। फिर वो झाड़ू जेम्स को मारने लगा। फिर जेम्स को भी पता चल गया कि उसने जादू के अल्फाज क्या बोले हैं। उसने वापस झाड़ू पे जादू के अल्फाज बोले और झाड़ू रुक गया। फिर जेम्स ने जादूगर को बोला, अब तो मुझे तुम्हारे सारे स्पेल्स पता चल चुके हैं, अब मैं भी जादू कर सकता हूँ। तो जैसे ही जेम्स ने जादूगर को कुछ बोलना चाहा, जादूगर जादू से एक बियर बन गया। द sorceress said magic words and turned into bear, huge bear. The bear was going to attack James and he was frightened. Then James repeated the magic words and thought about the snake. In a flash, James turned to a snake. Now he could attack the bear. He hissed and moved close, but when the snake came near, the bear turned into an eagle and swooped down on the snake. Then James turned himself into a cat and attacked the eagle. The battle went on, and all the while the raven sat on the top of a high window and watched. The cat chased the eagle and tore some of its feathers. The eagle flew out of the window and away up into the mountains. James then turned himself back into a boy. "Quick," he said to Raven, "let's get out of here." And he ran down the mountain to his village with the Raven following. After that, James was able to use his magic to help the villagers. They never had any trouble from the sorceress again. जैसे ही जादूगर बियर बन गया तो जेम्स भी जादू के साथ स्नेक बन गया। स्नेक ने बियर पे अटैक किया। फिर जैसे ही स्नेक ने बियर पे दूसरा अटैक करना चाहा तो जो बियर था वो कैट बन गया। कैट नहीं, ईगल बन गया। ईगल, स्नेक और ईगल की आपस में लड़ाई होती है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो वो जादूगर ईगल बन गया और जेम्स जादू से कैट बन गया। अब कैट जो है वो तो ईगल को खा जाती है, तो कैट ने ईगल पे अटैक किया। जैसे ही कैट ने उसके जो पंख थे वो तोड़ दिए। जैसे ही कैट ने ईगल पे दूसरा अटैक किया, ईगल दरवाजे विंडो से भाग गया और उड़ता हुआ वो पहाड़ों में चला गया और जेम्स वापस एक लड़का बन गया और अपने गांव वापस आ गया और रेवन को भी साथ लेके आ गया। फिर जब भी गांव वालों को किसी मदद की ज़रूरत होती थी, जेम्स उनकी मदद करता था। फिर वो जादूगर कभी लौट के नहीं आया और ना ही उसने गांव वालों को तंग करने की कोशिश की।
So dear students, now your homework is record the reading of book page 78 and 79 and circle the words that shows an action. We call them verb. Now circle the verb in this page and book page number 79. बुक पेज नंबर 78 और 79 में जो वर्ड्स हैं जिसको हम वर्ब कहते हैं, वर्ब, उसको आप सर्किल करें। ठीक है, जो भी वर्ब्स हैं वो आपको सर्किल करने हैं। जिस तरह के से ये लिव्ड है और हार्ड है। हार्ड मतलब हियर, हियर का जो थर्ड फॉर्म है वो हार्ड है। ओके, लिव्ड, लिव का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, हार्ड, लिव। दूसरे भी इस तरह के वर्ब होंगे जो आपको इस बुक पेज में मिलेंगे और आपको बुक पेज 79 में भी मिलेंगे। अच्छे से सर्किल कीजिए, वर्ब को सर्किल कीजिए और रीडिंग अच्छे से रिकॉर्ड करके भेजिए। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।